नमस्कार, आदाब, वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है। मैं आज की मुलाकात के लिए आप सबका भी स्वागत है। दोस्तों, हम कहानियों में ऐसे किरदारों के बारे में, ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है, जो एक लगभग एक मुहावरा ही हो गया है कि भाई फलां फलां तो ऐसा नसीबों वाला है कि मट्टी में हाथ डालता है और सोना निकालता है। और बजाय इसके कि मैं वो गिनवाऊँ कि फलां और फलां और फलां और फलां उद्योगों में और कामों में और क्षेत्रों में उन्होंने इतनी कामयाबी हासिल की है, हम एक काम करते हैं कि हम उनका परिचय खुद उनकी ज़बानी और उनसे बातचीत के दौरान कराते हैं और करते हैं। मैं फ़ौरन बुलाता हूँ स्टेज पर डॉक्टर विजय माल्या साहब को। आइए प्लीज़। गुड इवनिंग सर, वेरी नाइस हैविंग यू ऑन द शो। अच्छा, हमारा नॉर्मल सिस्टम ये है, we'll begin with a small little play of the highlights of a few of the things that you've done, and then we'll start talking. So we see the highlights on the screen. ये बताएं विजय साहब कि you're obviously, I mean, good at so many things, you've done so many things successfully. Suppose you were not a businessman, what would you be? बचपने से मेरा दुनिया तो परिवार के अलावा तो बिजनेस था. So I don't think it ever crossed my mind. One thing did. बचपना में my grandfather was a doctor. तो I remember it probably crossed my mind कि हाँ मैं एक डॉक्टर बन सकता हूँ. एक गुड़िया को मैं गुड़िया पे मैं सर्जरी करता था. अच्छा, उसका तो याद है अभी भी. तो were you like a spoiled child? Oh no. मेरा पिताजी का तो सक्सेस स्टोरी था. तो he set very high standards. तो एक दिन बुला के मैंने को कहा, I used to come first. You better come in the top 3. जब मैं कॉलेज जाने लगा तो साथ साथ मैं अपना ट्रेनिंग भी शुरू की. तो हमारे सामने जितने मैनेजर थे सबको बुला के उन्होंने कहा, विजय को मेरा बेटा मत समझो, इनको जरा जोर से रगड़ो. तो he was a hard taskmaster, but I appreciate it now. मैं एक और शख्सियत को बुलाना चाहता हूं जो आपको तब से जानती हैं और आपके बहुत करीब हैं, आप भी उनके बहुत करीब हैं. प्लीज आइए, तशरीफ लाइए. Thank you very much. Very sweet of you. Very nice of you to come. Right where we can both corner Vijay Saab. What do you remember of Vijay Saab when he was like a child? Well, he was very normal, like any other child. He was up to his pranks, which I think is
very normal once again. But he had a lot of varied interests. Was he an easy child to bring up? Oh, yes, I had no problems at all. And a little discipline, I think, is the duty of every parent. He's almost blushing with happiness. Let me share with you a few images of him as a little boy. Hi Vijay, you and I have really shared a very special childhood together, and I still remember how badly I used to bully you. Sometimes I wish I could bully you even now. But one thing I can say is that we both shared good times and bad times together, and I think that's what makes our friendship very special. You never cease to amaze me. You are so multifaceted, you know. And one thing I've always admired about you is your passion to excel at whatever you do. And really, I wish you all the very best in whatever you choose to do. But maybe one thing I'd like to ask you to do is keep seeking the advice of your elder sister. विजय साहब, as बहस जब आप कम उम्र के थे, जब आप स्टूडेंट थे, तब भी क्या were you like a go getter? मेरा पिताजी एक दिन कहा मेरे को कि भाई ये 30 बच्चे में से 14th-15th रैंक आने से तो यहाँ तो चलने वाला है नहीं। मैं फर्स्ट आया करता था, तो यू हैव टू बी इन द फर्स्ट 3 इन द क्लास। और तब से जो है एक बस दिमाग में ये घुस गया कि जो भी करना है बस ठीक से करना है और मेहनत लगा के, जोर लगा के नंबर 1 या नंबर 2 तो होना ही चाहिए। और ये आपको स्कूल के दिनों से था? हाँ। आई वांट टू डिस्कस दिस विद समबडी हु न्यू यू फ्रॉम दोस डेज। तो मैं उनको बुलाता हूँ, प्लीज आइए। Since you know him from when he was very young and you were like school boys together, what is your memory of Vijay sir? I'll tell you what happened once. We were doing a play together. Ah, by the way, he said that he wanted to be a doctor. I think actually he would have been an actor had he not been. He would, huh? Yeah. Once we were doing this play rehearsal, and the director, John Mason, our English teacher, told him, go and have a haircut. So this was doing rehearsal. Normally rehearsal started at 4 o'clock. Next day we were waiting for him. 4 o'clock came, 5:30. Vijay shows up at about 6. So everybody's wondering what happened. So he looks at John Mason in the eye and says, you told me to have a haircut. I only cut my hair at the Taj in Bombay. And later on, we found out that he actually had to go for a meeting to Bombay on some of his dad's work. Okay. But he didn't say that to us because he didn't want to sound pompous. विजय साहब ने ये हमको बताया नहीं कि इनको ड्रामा वामा में भी इंटरेस्ट था। हम उसकी कुछ तस्वीरें देखते हैं यहाँ। You probably remember most of the guys I'll name. Mukherjee, Murli, Guttu, Chippy. These are all guys I spoke to. And I'd like to do something on their behalf. And I want to give you something. You don't part with this easily. But because I think you have achieved a kind of greatness that we only dream of, I'd like you to have this. You can open it now or later. It's in the original box. I'd like you to have it. My God. इसका काफ़ी सिग्निफिकेंस है। We won't, let's not get into that. ये मेरा स्कूल का गुड कंडक्ट मेडल है। रफ़ीक और मेरे बीच में कंपटीशन बहुत था इस मेडल के लिए। रफ़ीक ने जीता
it's yours. It is an achievement award. It's something which I think all of us hold very dear. You won it. But I mean, he won it No, and we won it. He I obviously kept thinks it that for you 30 deserve years. You keep it for the next 30. वेलकम बैक वीडियोकॉन। जीना इसी का नाम है। मैं विजय माल्या साहब से मुलाकात हो रही है। कुछ लोगों की आंखों में जो है जहाँ खूबसूरती होती है वहाँ शरारत भी होती है। तो मैं एक ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहता हूँ जो हमको विजय साहब की कुछ शरारतों के बारे में बात करे और बताए कि दरअसल विजय साहब जितनी शरारतों को इस वक्त रोके हुए हैं, जब करते थे तो कैसी होती थी। प्लीज़ आइए, तशरीफ लाइए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप इनको बहुत अच्छी तरह जानती हैं इसलिए आप इन्हीं की बगल में खड़े रहें। आप प्लीज़ इधर आ जाइए ताकि मेरी शान में भी थोड़ा इजाफा हो जाए। हम बातें कर रहे थे कि जब ये स्कूल के स्टूडेंट थे या बहुत जवान थे, तब विजय साहब कैसे थे, मतलब आप उनको तब से जानती हैं? I think he was very sharif. He was very shy, very intense, इंटेंस तो खैर, और बहुत अच्छा दोस्त। he is obviously still a friend whom anybody you talk to and who has known him down the years still loves him and likes him and feels close to him. That's because Vijay is a very sensitive man, and he's also somebody that literally, where we have grown, he has grown, and has grown with such dignity, because to have everything and to make it 100 times bigger, I think very few people can do that, and therefore I am very proud of him. Vijay sir, you were already the son of a very successful man, but आपने वो, you didn't just settle down to rest on those laurels as they were. You pushed harder, you strove harder, you drove yourself a little more. पिताजी जब थे तो चैलेंज मेरे को देता था रोज, एक एक्सपेक्टेशन सा था। फिर तो बड़ा अचानक गुजर गए। मेरा तो उम्र 26 था, तो यूबी की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गया। फिर प्रेस वाले बड़े लिखने लगे कि ये तो प्ले बॉय है, इससे कोई काम होने वाला है नहीं, और कंपनियों की बैंड बज जाएगी। मेरे को ये बस मैं फैसला कर लिया कि मैं दिखाऊंगा, सबको दिखाऊंगा। और यूबी जब बढ़ने लगा, जब यूबी को मैं विदेश ले गया, अब तो वही लोग कहते हैं कि यूबी तो ठीक है, अब आप राजनीति में क्या करेंगे। हम बहुत रवानी में बहुत आगे निकल गए। नफीसा, आप 1 मिनट तशरीफ रखें, मैं इनके एक और दोस्त को बुलाना चाहता हूँ। प्लीज़ आइए। आदाब बीरेन साहब, हाउ आर यू? नाइस टू हैव यू। जब ये कॉलेज में थे और जब आप इनको तब देखते थे, तब भी ऐसा लगता था कि ये गैर मामूली ड्राइव का और डिटर्मिनेशन का आदमी है और ये ज़िंदगी में सिर्फ एक रईस बाप का बेटा नहीं बनेगा, कुछ करके दिखाए। कॉलेज में भी ऐसा लगता था? He came from a very affluent family, but I remember Lalita auntie kept a very tight control. So I don't think he was a spoiled child. He was spoiled with love, but not spoiled with money. And talking of patience and determination, the swimming pool during the college days became a car garage. The same applied to aero modeling or to anything that he did in his life. It was a lot of diligent work, a lot of commitment, a lot of personal understanding, but I think it was always this positive outlook, this quest for achievement. और धुन के पक्के। धुन के बिल्कुल। ये आपके कॉलेज के ज़मानों की कुछ चीज़ें हम देखते हैं यहाँ। आपने तो सामने गेट दिखाया, आपने पीछे गेट नहीं दिखाया। क्योंकि पीछे गेट के बाहर एक चाय का दुकान था, काफ़ी लेजेंडरी। काफ़ी दिन उधर हम गुजारे।
वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है कि इस सेगमेंट में आप सबका फिर से स्वागत है। विजय मल्ल्या साहब से बातें हो रही हैं। विजय साहब के साथ बातें जब हम कर रहे थे तो उन्होंने एक जिक्र किया बहुत इंपॉर्टेंट बात का, और यूँ सरसरी तौर पे जिक्र करके, जैसा इनका मैं समझता हूँ स्टाइल है कि इंपॉर्टेंट चीज़ों को यूँ आसानी से कह के निकल जाते हैं। इन्होंने कहा 26 साल की मेरी उम्र थी जब मेरे पिताजी का अचानक देहांत हो गया। व्हेन दिस हैपेंड यू वर नॉट रेडी फॉर दैट। I was not ready for it, for my father to suddenly pass away. एक चीज़ बिल्कुल दिमाग में पहुंच गया कि अभी पिताजी है नहीं, the buck stops with me. नहीं तो in case of difficulty, ठीक है मैं फ़ोन उठा के पूछता हूँ मैं क्या करूँ. I said, well, from now on I have to ask myself. शुरू में बड़ा मेथोडिकली जो है मैं यूबी को काफ़ी रीऑर्गेनाइज किया। पिछले 20 साल में तो सक्सेस भी रहा है, फेलियर भी रहा है, बट ओवरऑल बैलेंस शीट तो ठीक है। There is somebody else who also knows you. Let's talk to him. आइए सर। आदाब रवि साहब, आइए। आप विजय साहब को कब से जानते हैं? मैं कम से कम 27-28 साल हो गए। आपको ऐसा लगता है कि ये आदमी बहुत फौरन सोचता है और फौरन फैसला करता है? एब्सोल्युटली, बहुत क्विक थिंकिंग है और अच्छे डिसीजन फटाफट ले जाता है। लगता है लोगों को कि इधर उधर जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, बट आई हैव नोटिस्ड इन 27 ईयर्स नाउ कि क्या डिसीजन बढ़िया निकलते हैं। आप सर तशरीफ रखें, मैं इनकी ज़िंदगी का एक दूसरा रुख इस पर्दे से दिखाना चाहता हूँ। आप भी देखें, प्लीज़ तशरीफ रखें सर। हम यहाँ देखते हैं विजय साहब और फिर आगे बात करते हैं। जितने आपके बिजनेस इन्वॉल्वमेंट्स हैं और अब पॉलिटिकल कमिटमेंट्स हैं, उसके बावजूद क्या आप अपनी फैमिली को भरपूर टाइम दे पाते हैं? मैं अपना परिवार को समय ज़्यादा देने चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी नहीं होता है। हमारा वाइफ और हमारे बच्चे बाहर रहते हैं, तो मैं जाने का तो बहुत कोशिश करता हूँ। राजनीति में आने के बाद समय और भी कम हो गया। बट आर यू अ फॉन्ड इंडल्जेंट लाड़ लड़ाने वाला फादर? Oh, absolutely. My wife always tells me that I don't know how to say no. And why not? I mean, as long as the children grow up with the right values, it's fine by me. नफीसा, मैं आपको फिर तकलीफ दूंगा क्योंकि अब जो पहलू इनकी ज़िंदगी का मैं जिसका जिक्र करने जा रहा हूँ उसमें आपका होना ज़रूरी है। Oh God. इनका एक और पहलू है जो इनको अखबारों में बहुत रखता है कि भाई ये बहुत सारे घोड़ों के मालिक हैं और बहुत नामवर घोड़ों के मालिक हैं। और ये शुरू कैसे हुआ? स्कूल के दिनों में से घोड़े में काफ़ी इंटरेस्ट रहा। हमारे दोस्त लोग राइडिंग भी करते थे। मैं भी एक जॉकी थी। हाँ, नफीसा तो जिमखाना रेस में जॉकी इसलिए थी। तो मैंने आपको यहाँ बुलाया। हाँ, उस दिनों से मेरा घोड़े में इंटरेस्ट तो था। जब मैं कॉलेज में था, एक टॉलीगंज क्लब से मैंने एक घोड़ा लीज पे ली और वो घोड़े को अपने मेन कैलकाटा की रेस कोर्स में दौड़ा के वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा। वहाँ भी थोड़ा पैसा मेरा बन गया। आई रेस हॉर्सेस, but once again, I never have gambled, I never will gamble. And when he started buying good horses, he used to buy them more expensive than what the value of the horse was in the market. And I told him that. And he told me, I don't care, let everybody say that I'm buying expensive horses. But at least I'm buying the best. Yeah, he's the best and the most expensive. And in that way, he's got attitude. Okay, let's find out somebody who deals with that. Can I sit आइए down? please आइए. Oh yeah, of course, yeah, Thank you're you. free to sit down.
आदाब, हाय पेशी, हैव नाइस टू सी यू, ग्रेट एडमायरर ऑफ यू। आपका तजुर्बा मतलब आप अव्वल तो ये कि आप विजय साहब को पहले कब मिले थे? हाउ डिड यू ऑल कम टुगेदर? Well, we met socially in Calcutta. I was a racehorse trainer there. And he took me racing one day to the amateur races to show me a horse, an ex-race horse, which he had taken on lease. Apparently, that horse did quite well at the amateur races. And he suggested, why don't you have a crack at it at the main races? So I took it over, and the horse won 3 races pretty creditably. And since then, Vijay's got the racing bug. And in a short period of time, he's won nearly 150 classics, not only in India, but overseas as well. And how did you, of course, everybody knew the great Pesi Shroff, but how did you first run into each other? Well, we met socially once for dinner before Dr. Malia was in racing, and at that time, I remember him telling me that I'm going to buy the best horses in the country. And a couple of years down the road, I got a call from his brother-in-law, Pritam, asking me, would you like to ride for Vijay? It was the best job in the country. I jumped at it, and we haven't looked back. और हर रेस से पहले, कम से कम बड़ी रेस से पहले आप लोग बैठ के म्यूचुअली कंसल्ट करते हैं, यार इसको दौड़ाना है, इसको नहीं दौड़ाना है. The UB racing team works together, and we decide what we need to run in a particular race, and we work towards it. You'll obviously make very good decisions. Let's see how many of them, I mean, a few of them bearing fruition. Let's see a picture here. Join this. Is it important to you कि आपके घोड़ों से भी आपको पैसा मिले ही मिले? Is that important to you? You know, nobody wants to be a loser. You don't expect owning horses, particularly for a non-gambling owner like me. मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मैं घोड़ा खरीद कर उसको दौड़ाकर मैं अपना इनकम बढ़ाना चाहता हूँ. ऐसे तो कभी नहीं होता है. घोड़ा हम लेते हैं जब वो 2 साल का होता है. वो जब 3 साल पहुँचता है उम्र में, तभी भागने लगता है. और उसकी ट्रेनिंग, उसकी वर्किंग, उसको कैसे लीड अप करते हैं हम लोग, ये बड़ी सेंसिटिव बात है. ये नहीं कि उसको केवल रोज़ दौड़ा के कोई घोड़ा अच्छा बन सके. बड़ा प्यार से, बड़ा स्किलफुली इनको ट्रेन करना पड़ता है. It's almost like setting your own children into the field and celebrating when they win. Particularly if you breed. वेलकम बैक. वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है. मैं मुलाकात हो रही है विजय माल्या साहब से. बहुत अच्छे घोड़े रखते हैं, घोड़े दौड़ाते हैं, उनमें बड़ा इंटरेस्ट लगते हैं, बहुत से उद्योग चलाते हैं, बहुत से करते करते एक और बहुत से में आ रहे हैं. अलावा इसके कि आप खुद मतलब अच्छे ठाट के कपड़े पहनते हैं और बड़े शौक से कपड़े पहनते हैं. ये आपका शुरू ही से शौक रहा है? Were you a natty dresser? Colorful would be a better description. शौक था रेड और ऑरेंज और येलो पहनने का, लेकिन उतना नेटी नहीं. I mean, fashion is something that I've always been interested in, and plus, of course, with my brands being built on lifestyle, fashion is an integral part of it. उसका एक हिस्सा है. और आप तो उसको खूब you bring it to the forefront in a very big way. Let's talk to this person. He has a little experience of that. आइए. आदाब रोहित साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए. आइए सर, आइए. रोहित साहब, आपकी मुलाकात पर्सनली विजय साहब से कब हुई थी? I think many years ago in Bangalore, हमने एक शो किया था, and we met Dr. Malia there, and I think the first impression that I have of him is the fact that he has a passion for everything. And we went to his house, and the first thing I saw was his incredible collection of vintage cars, which I'll still never forget. And I think I realized that he's the kind of person who will always be passionate about life and about everything, including fashion. Vijay has an incredible award ceremony, which is called
Kingfisher Fashion Awards. Politics. I mean, definitely one of the most dapper, मतलब वो ये smart, क्या नहीं suave- करते उसकी लिस्ट थोड़ी छोटी हो गई। आपने Exactly. आपने एक बहुत Exactly. अच्छे अवार्ड का जिक्र किया, मैं चाहता हूँ वो अवार्ड की एक झलक हम यहाँ देखें। ये जो आपके प्रोडक्ट के नाम से आपने जो अवार्ड इंस्टीट्यूट किया है, इसका ख्याल आपको कब आया? मतलब ये खुद आपने सोचा कि ऐसा करना चाहिए, या रोहित साहब जैसे और 2-4 लोग मिले और उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं करते? बहुत साल पहले हमने फैसला किया कि हमारी जो ब्रांड्स है इसकी एक यूनिक एक प्लेटफॉर्म होनी चाहिए प्रमोशन के लिए, क्योंकि हमें इस देश में लिकर की एडवर्टाइजिंग करने नहीं देते हैं, तो कोई अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म सोचना पड़ा मेरे को। तो ये किंगफिशर फैशन अवार्ड्स की आइडिया तो तकरीबन 10 साल पहले आया था। अब फैशन इस देश में फैशन की रिकग्निशन नहीं थी, तो सब लोग ने यही एडवाइस दिया कि फैशन की कुछ रिकग्निशन आप पेश करो। तो इसलिए हमने किंगफिशर फैशन अवार्ड्स शुरू की, और ये हर एक साल हम केवल डिज़ाइनर को नहीं, मॉडल्स को, मेकअप आर्टिस्ट को, हेयर स्टाइलिस्ट को, फोटोग्राफर्स को, सबको हम अवार्ड देते हैं। और एक बहुत पते की बात आपने ये कही कि आप अपनी ब्रांड नेम को जो है लोगों की नज़र में, लोगों के जहन में ताज़ा रखना चाहते हैं। और एक कमाल की चीज़ इन्होंने ये भी सोची कि न सिर्फ ये कि साल में एक बार ताज़ा हो, लेकिन वो हर रोज़ और हर हफ्ते और हर महीने आपके सामने ताज़ा रहे। और वो जिन साहब ने करने में जो है इनका साथ दिया, उन साहब को मैं पहले बुलाता हूँ। आइए। अब ये बात कर रहे थे कि भाई हमने सोचा कि भाई फैशन को एक रिकग्निशन भी मिले और हमारा ब्रांड नेम भी जो है वो लोगों के जहन में रहे। तो ये एक ज़बरदस्त आइडिया के साथ एक कैलेंडर ही ऐसा बना दिया जाए कि जिस पे कुछ हसीन शक्लों के साथ इनका ब्रांड नेम। ये आइडिया दरअसल किसका था? Kingfisher has a space in Indian fashion. It's the only brand that promotes designers and things actively. Or if we make a calendar, so only one person in India can carry it off. तो मैंने विजय साहब को फ़ोन किया और कहा कि मुझे आपसे मिलना है। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, गोवा आ जाओ। और मैंने एक डमी बनाई थी छोटी सी, तो he didn't let me finish my presentation also. He said, look, it's a really good idea. Go for it. इन्होंने इस कैलेंडर को एक प्लेटफॉर्म बनाया है इंडियन फैशन के लिए, where it goes out to 52 countries in the world. हाँ, मैं अतुल को बधाई दूंगा कि फूड एंड बेवरेज एडवर्टाइजिंग अवार्ड्स जो अभी लंदन में हुआ, किंगफिशर कैलेंडर का बेस्ट फोटोग्राफी अवार्ड दिया गया, और ये तो अतुल का काम है। तो सर हम वो अवार्ड वाली कमाल की चीज़ को ज़रा पर्दे से यहाँ देख लें। वेलकम बैक। वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है, मुलाकात हो रही है। जी साहब, एक लोगों के लिए तो मुहावरे में कहते हैं, इनके लिए हकीकत में कहना पड़ेगा हर फन मौला विजय मल्ल्या साहब से। एक और शख्सियत है जो कोई ऐसी चीज़ जो ख़बर पैदा करती हो, जो चर्चा में आ जाती हो, जो बतलाने और लिखने के काबिल हो, वो उनकी नज़र से नहीं बचती, जिनको मैं अभी दावत दे रहा हूँ कि अभी प्लीज़ स्टेज पे तशरीफ़ लाएं।
आदाब शुभा। शुभा आप यहाँ प्लीज आ जाएं। सबसे पहले आपने इनको नोटिस कब किया था? How can you not notice him? He is hard to ignore. True. But I think he is one person who redefines the rules and always has all his life. And that's what I find very amazing about him. But the Vijay I know is, perhaps I've been privileged to know, is the Vijay that the world doesn't know. They see the flamboyance, I see the spiritual side. Always have. He's a great patriot. We were chatting in the car when he got a call to say the Tipu Sultan sword was up for auction. And a person asked him, what should I bid? And he said, one cannot put a price to something as priceless as this. Whatever it takes, we have to get that sword back to India, which of course he has. बहुत बहुत अच्छी चीज़ का आपने जिक्र किया। हम पहले उसकी एक तस्वीर देख लें, फिर उसकी बात करते हैं, प्लीज़। देखिए साहब, ये तलवार खरीद कर यहाँ हिंदुस्तान वापस लाने का ख्याल आपको पहले कब आया? दिस इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिस्ट्री। टीपू सुल्तान और अपना देश का इतिहास में कोई फ़र्क तो है नहीं। खुशी की बात है कि टीपू की तलवार अभी घर पहुंच गया। शोभा, आप चूँकि इनको करीब से जानती हैं, तो एक तो वो डायमेंशन है जो इनका पब्लिक, लेकिन जब ये बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, व्हेन ही इज़ विजय माल्या द पर्सन rather than Vijay Mallya, the personality of public face, तब ये कैसे होते हैं? Vijay Mallya, when he relaxes, is Elvis Presley and Elton John put together. Well, the people perhaps don't know this. He plays the drums, he plays the guitar, he sings, and he's an excellent mimic. So he can get Lalu Prasad down pat. हम क्यों महरूम रह जाएं? मतलब ये शोभा जी अकेली देखती रहें और हम लोग ना देखें, ऐसा तो नहीं हो सकता। लालू जी हमारे से नाराज़ ना हो जाए। लालू जी को मैं बहुत इज्जत देता हूँ, लेकिन लालू जी का तो अपना स्टाइल है। मैंने तो सभा में देखा लालू जी खड़ा हो गए, सभापति जी, वो जैसे उनका तो स्टाइल ही अलग है। ताकि लालू जी हाउस में जब बोले तो सब कोई और चुप बैठ जाता है। उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उनका स्टाइल है, वो अलग चीज़ है। तो हम आश्चर्य नहीं है कि बिहार के लोग उनको इतना प्यार करते हैं। वही तो शोभा जी, आप प्लीज़ तशरीफ रखें। मैं एक और इनके दोस्त और एक साथी को बुला सर, आप प्लीज़ तशरीफ। सर मैं उनको पहले बुला लूँ और फिर मैं वो आगे की बात करूँ। हाँ आइए प्लीज़। आदाब राजीव साहब, आइए सर, आइए। जब आपने ये सुना कि दी मिस्टर विजय माल्या जो हैं आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, तो आपको पहला ख्याल क्या आया? मेरा क्या, जितने एमपीज़ थे, जितने लोग पॉलिटिक्स में थे, सब आश्चर्यचकित थे। तो पॉलिटिक्स में तो कोई सीरियसली इनको लेने को तैयार ही नहीं था। सब समझे कि कहाँ से ये इतने पैसे वाले, इतने डिफरेंट इनके जो है एरिया ऑफ इंटरेस्ट में इनकी दिलचस्पी होगी, कैसे यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो इन्होंने कमाल कर दिया। इनकी पहली मेडन स्पीच जो थी वही कम से कम जो है 20 मिनट की स्पीच थी। इसके बाद इनका सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ था कि जो पार्लियामेंट क्वेश्चन था पहला, वो किसके बारे में था? किसानों के बारे में। तो इस तरह के उन्होंने जाके एक पॉलिटिशियन की ऐसी इमेज बनाने की कोशिश की कि सचमुच पॉलिटिक्स में बड़ा सीरियसली जो है पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। मुझे लगता है, और बाद में जैसा उन्होंने कर्नाटक में किया फारूक साहब, कि जब ये चुनाव के पहले एक साल जो दौरा किया उन्होंने, गांव-गांव में जाके, कहीं बैलगाड़ी पे चढ़ के, कहीं जो है ट्रैक्टर पे चढ़ के, तो उस समय लोगों को लगा कि भाई ये पॉलिटिक्स को कुछ सीरियसली ले रहे हैं। अब मैं भी मानने लगा हूँ कि ये सीरियस पॉलिटिशियन है। हम उसकी एक झलक देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ये स्वागत के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप लोग सबको देख के मैं बहुत खुश हूँ और आपसे ये पूछूंगा कि इस बार सोच समझ के वोट दीजिए। देखिए साहब, ये पॉलिटिक्स में जाने का ख्याल आपको कैसे और क्यों आया? समय थोड़ा था हाथ में, और मैंने ये भी देखा कि सब लोग कह रहा है कि इंडिया जो है डेवलपिंग नेशन होते हुए एक गरीब सा देश है। ये मानने को तैयार नहीं हूँ मैं।
तो हमने ये सोचा कि हम जितना मैं बयान टेलीविज़न में दूं या तो पत्रिका में दूं, कोई सुनने को तैयार नहीं है. So it is with that thing in mind that I would like to help change the country for the benefit of all the underprivileged people, and I should be heard. So now, as Rajiv ji will tell you, when we speak in parliament, we have to be heard. We cannot be ignored. एक बात तो मैंने देखी फारूक साहब कि ये पार्लियामेंट रेगुलरली अटेंड करते हैं, सेंट्रल हॉल में बैठते हैं. और जैसा आपने कहा, इसको बहुत सीरियसली लेते हैं. कभी कभी बड़े सीरियस काम भी कर लेते हैं. मैं देखिए एक बहुत सीरियस काम हो गया ये. Hi Vijay, how are you? I always think of you as a wonderful human being, a good friend, and a wonderful host. All I can say is, when you want to see or test a good friend or a man's character, you have to share a calamity. And the Balkot helicopter crash calamity, which you and I were involved in, spoke a lot about you. I would always remember you, Vijay, as a good man, as a good friend, a man with a vision, a man with dynamism. I've admired you as a friend, and I will always continue this admiration. What was this experience like? Has it like changed you very, very majorly? दुर्घटना तो ऐसे हो जाता है ज़िंदगी में, और मैं इतना कहूँगा कि सब हम लोग निकल गए उस दुर्घटना से. उसी समय 4 और हेलीकॉप्टर की क्रैश हो गए और सब गुजर गए. तो आई कंसिडर माई सेल्फ इवन मोर लकी. राजीव साहब, आप तशरीफ रखें यहाँ. मैं इनकी ज़िंदगी का एक और बहुत रंगीन पहलू जो है उसका जिक्र करना चाहता हूँ. सर, आपको फिल्में बनाने का शौक़ कैसे हुआ? फिल्म इंडस्ट्री को मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री समझता हूँ. एंटरटेनमेंट में म्यूज़िक भी है, फिल्म्स भी हैं. पहले तो रूमर ये था कि फिल्म इंडस्ट्री में हाथ लगाना नहीं चाहिए, बहुत सारा जो अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस हैं ये वो, तो मैंने हाथ नहीं लगाया. जब मौका मिला कि हम बड़ा एक क्लीन सा हिसाब से एक मूवी हम प्रोड्यूस करने का एक अपॉर्चुनिटी जब हमें मिला, मैंने कहा दिस इज़ एंटरटेनमेंट, आई एम इन एंटरटेनमेंट, इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल, तो लेट्स प्रोड्यूस अ फिल्म. आप लोगों को जान के ये खुशी होगी कि ये जो है कविताएं भी लिखते हैं. चलिए विजय साहब से कहते हैं, सर आप अपनी कविता का कोई एक अच्छा सा अंश, एक अच्छा सा हिस्सा जो आपकी पसंद का हो, पढ़ के सुनाएं. Agni, Prithvi and space age technology, computer science, medicine at all. A nation that prides itself in modern self-sufficiency, is it real for a few and a dream for all? Awake, young India, awake. Ignite your minds and do not forsake your future, which is at stake. Teach the world that we are blessed with imagination and innovation, the will and determination, and we shall not rest till India proves that in this millennium, she is truly the power of a billion. एक जिक्र हुआ तो 2-3 लोगों ने ये कहा विजय मल्ल्या साहब के बारे में कि ही इज़ द किंग ऑफ गुड टाइम्स. लेकिन इनसे मुलाकात करने के बाद और इनसे बात करने के बाद ऐसा लगता है कि ही इज़ नॉट जस्ट द किंग ऑफ गुड टाइम्स इन द सेंस ऑफ एन्जॉइंग द गुड टाइम्स, ही इज़ ऑल्सो द क्रिएटर ऑफ द गुड टाइम्स. Because we had a terrific time meeting you, Mr. Vijay Mallya, and thank you very much for being on the show. अगले हफ्ते हम अगले हफ्ते किसी और दिलचस्प शख्सियत से मुलाकात करने का वादा करते हैं, और तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं. आदाब. मैं उठूँगा, I'll be 40 years old. एक बड़ा सा घर सबर्ब्स में होगा, एक गाड़ी, 2 बच्चे और एक कुत्ता.